Hello, friends. Very good evening. Dear friends, I am going to explain some important questions on what vitamin that will be very useful for PGT exam and many other exams. So, without wasting our time, let's take very first question. Something there is more immortal, even the stars. ये लाइन किस पोम से ली गई है? व्हाट विटमन्स ऑन द बीच एट नाइट, Ward Whitman crossing Brooklyn Ferry. Option C, Whitman's A Passage to India. Or none of these. So something there is more immortal even the stars. जब वो तो ये ऑन द बीच एट नाइट की लाइन है और इसमें जब एक छोटी सी लड़की अपने पापा से स्टार्स के बारे में पूछती है तो उसका पिता ये बताता है समथिंग देयर इज मोर इमोर्टल इवन द स्टार्स। तो ये उसके शब्द हैं। तो नेक्स्ट, बट रियली आई एम नाइदर फॉर नार अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन। आई एम नाइदर फॉर नार अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड very very important line. Option A, I hear it was charged against me. Native movement, crossing Brooklyn Ferry, a passage to India. So dear friends, correct answer is option number 1. I hear it was charged against me. Next, the phrase a gigantic beauty of stallion. A gigantic beauty of stallion appears in Native movement, crossing Brooklyn Ferry. Option C, animals. Section 32. Option D, none of these. So, a gigantic beauty of stallion. This phrase was mentioned in the poem Animals, and it is one of the best poem of Walt Whitman. Or so, option number C is correct. Next, I but I but use you minute, then I resign you stallion. Why do I need pace when I myself outgallop them? So these lines are from Whitman's Animals, Passage of India, On the Beach at Night. So correct answer is option number A. O powerful western fallen star, O powerful western fallen star, O shade of night, O moody tearful night. These lines are from Whitman's O powerful western fallen star. यहाँ पर वेस्टर्न फॉलन स्टार से तुलना किसकी की गई है? अब्राहम लिंकन की गई है। तो अब इतने में बहुत ही आसान बन गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, it is some dream that on the deck you have fallen cold and dead. Oh, very important. पहले यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट में ये पोएम हुआ करती थी, फिलहाल आजकल नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ओ कैप्टन माय कैप्टन। वेरी ब्यूटीफुल इलेजी। नेक्स्ट, but I with mournful tread walk the dead on my captain lies fallen cold and dead। और यहीं से आप समझ सकते हैं कहाँ की लाइन है, ओ कैप्टन माय कैप्टन। और ये पोएम 1865 के आसपास में आई थी। आई वॉन्ट टू वेट टिल यू ब्रो माई मेट टू मी। आई वॉन्ट टू वेट टिल यू ब्रो माई मेट टू मी। So, which is the correct answer? When lilac last in the dooryard bloomed, native movement, or crossing Brooklyn Ferry, out the cradle endlessly rocking. I want to wait till you bro, my mate to me. So, correct answer is option number D. Ward Whitman got his didactic novel published in the New World in 1842. Ward Whitman got his didactic novel published in the New World
इन 1842 वॉर्ड विटमन ने 1842 में न्यू वर्ल्ड में अपनी एक नॉवेल पब्लिश कराई थी और उसका नाम था क्या एनिमल्स, नहीं ये पोइम है, बिगिनिंग माई स्टडी। फ्रैंकलिन इवांस, हाँ यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फ्रैंकलिन इवांस, ये इनका एक नॉवेल है और इसका जो सब टाइटल है द इनेब्रिएट अ टेल ऑफ टाइम्स। फ्रैंकलिन इवांस या द इनेब्रिएट अ टेल ऑफ टाइम्स and it was published in when 1842। नेक्स्ट, और 1842 को देख करके मुझे एक चीज की और याद आ रही है, शायद ये वही दौर है जब ब्रिटेन में क्वीन विक्टोरिया का शासन हुआ करता था। नेक्स्ट, हु हैड बीन एडिटर ऑफ ब्रुकलिन ईगल। ब्रुकलिन ईगल का एडिटर कौन है? ब्रुकलिन ईगल एक समाचार पत्र है और उसका प्रकाश संपादक कौन था? तो फ्रॉस्ट नहीं, इजरा पाउंड भी नहीं, इलियट भी नहीं, वॉट विटमन। वॉट विटमन एडिटेड एन एंटी स्लेवरी पेपर, एंटी स्लेवरी पेपर, और इन ब्रुकलिन, ब्रुकलिन नामक पत्रिका में, और अच्छा द पेपर वॉच, वो पेपर कौन सा था? द फ्री मैन, द बॉन्डमैन, द डेली न्यूज, द स्लेव मैन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इन्होंने फ्री मैन नाम का के पेपर में एंटी स्लेवरी पेपर इन्होंने प्रकाशित किया था। हाउ मैनी पोइम्स वर इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास कब आया? 4 जुलाई 1855। कब आया? 4 जुलाई 1855। और पहली बार जब आया तो इसमें केवल कितने थे? 12 पोइम। द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, the first song of myself present a symbolic man of 19th century, 20th century, 21st century, 22nd century. So option number A is correct, 19th century. I am not blind to the work of wonderful gift of leaves of grass. Leaves of grass नामक जो वंडरफुल गिफ्ट आपने दिया है, इसके प्रति मैं अंधा नहीं हूँ। आई फाइंड इट मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस ऑफ विट एंड विजडम दैट अमेरिका हैज येट कंट्रीब्यूटेड। ये कमेंट किसका है? थोरियो, इमर्सन, डिकिंसन, फ्रॉस्ट। सो डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, I want to tell you the correct answer. Correct answer is option number B, R.W. Emerson. Next, Whitman is wonderfully good. अद्भुत रूप से जो विटमन थे वो अच्छे थे। ये थोरियो, इमर्सन, फ्रॉस्ट, डिकिंसन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थोरियो। नेक्स्ट, which book was revised by Whitman many times, not by 1 2 3, 9 times it was revised. So option number A is correct, Leaves of Grass. Next, in 1889 Whitman added a backward glance over traveled road. So a backward glance over traveled road, a passage to India, November बा, और लीव्स ऑफ ग्रास। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लीव्स ऑफ ग्रास। वन सेल्फ आई सिंग अ सिंपल सेपरेट पर्सन, यू अटर द वर्ड डेमोक्रेटिक, द वर्ड इन मास। सो वन सेल्फ आई सिंग, यहीं से आप समझ सकते हैं कहाँ की लाइन है। वन सेल्फ आई सिंग व्हेन लाइलैक लास्ट इन डोर एयर ब्लम्ड, और नेटिव मूवमेंट, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। लेकिन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये यहीं की ये लाइन है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास अपीयर्ड इन। सो दिस क्वेश्चन is very easy. Option number A, 1855.
4 जुलाई 1855 को ये पहली बार आई थी। लीव्स ऑफ ग्रॉस इज अ बुक ऑन एरिस्टोक्रेसी, स्लेवरी, नन ऑफ दीज या डेमोक्रेसी। सो ये डेमोक्रेसी के ऊपर एक बुक है, लोकतंत्र। नेक्स्ट, द पोम ऑफ ओ कैप्टन माई कैप्टन अपीयर्ड इन। सो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। 1865, 66, 67, 68। सो इट वाज पब्लिश्ड इन 1865। नेक्स्ट, द पोम आई हियर इट वाज चार्ज अगेंस्ट मी। यस। और फर्स्ट अपीयर्ड एज नंबर 24 इन द क्लाइमस क्लस्टर। ठीक है, कब? 1860, 1868, 1869, 1870। तो पहली बार जो आया था वो 1860 में आया, ये मैं पहले बता चुका हूँ। In later edition, it remained in essentially the same position with just one word changed, was replacing it। यानी पहले इसका जो नाम था आई हियर इट इज चार्ज अगेंस्ट मी, और बाद में इन्होंने नाम चेंज किया, और नाम चेंज करके कब लेकर गया? 1867 में। यानी 1860 में इसका नाम था आई हियर इट इज चार्ज अगेंस्ट मी, और 1867 में ये नाम था। नेक्स्ट, in which poem Whitman makes a reference to Suez Canal or wire line across Atlantic. O Captain, my Captain, Passage to India, Earth my likeness, Prayer to Columbus. Next, so correct answer is option number B, Passage to India. Next, Whitman's poem Crossing Brooklyn Ferry contains, next देखते हैं, from which poem of Whitman have the following lines been taken? O powerful western fallen star, O shade of night mood, O moody tearsful night, O captain, my captain, when lilac last in dooryard bloomed, crossing Brooklyn ferry, or none of these. So correct answer what? Option number B, when lilac last in the dooryard bloomed. Which of the following poet was of the opinion that art like trees and shrub? आर्ट जो है वो, आर्ट की तुलना पेड़ों और श्रब से किसने किया है? किस अमेरिकन पोइट ने किया है? तो हैड अ नेचुरल ग्रोथ। और जैसे पेड़ों का, श्रब्स का नेचुरल ग्रोथ होता है, उसी प्रकार से पोइट्री का भी ग्रोथ होता है। ये लाइन क्या वर्ड्सवर्थ की है, या शेली की है, फ्रॉस्ट की, या विटमन की? करेक्ट आंसर है वाट विटमन। My tongue, every atom of my blood, formed from this soil, this air, born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same. I now 37 years old, in perfect health, begin hoping to cease not till death, uh, not till death. These lines are from where? Whitman's Song of Myself, Eliot's Wasteland, Wordsworth's Prelude. So correct answer is Whitman's Song of Myself. Next, whose father was a carpenter? किसके पिता एक कारपेंटर थे? तो वो कौन थे? वो निश्चित तौर पे वाट विटमन थे। वाट विटमन के पिताजी एक कारपेंटर थे। नेक्स्ट, लूसी वॉन वेल्सर, अ डच लेडी, वॉज द मदर ऑफ। लूसी वॉन वेल्सर ये एक डच थी, और डच मतलब नीदरलैंड से बिलोंग करती थी, और ये किसकी माँ थी? तो ये वॉट विटमन की माँ थी। Who included When Lilac Last in the Dooryard Blum as part of sequel to collection of poem under the title Drum Taps and sequel to Drum Taps। तो निश्चित तौर पे ये किसकी पोएम है? वॉट विटमन की है। तो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और When Lilac Last in the Dooryard Blum is a free verse. As far as this poem is concerned, this is a very important poem, and here the question
is that how many lines are there in this poem? So correct answer option number A 206 लाइन 206 लाइनें इसमें हैं. So friends, आज बस इतना ही और आगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप निश्चित तौर पर शेयर करें. और कुल मिलाकर के एक प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, और आप भी देखें, आपका भी क्लियर हो. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.